Hello all of you. So now take out your English practice book and today we will do unit 1 nouns, and today we will read about abstract noun. So you can read here, read the worksheet 1, read the favorite things given below. So this is a girl and her favorite things are these. My favorite things: raindrops on roses, whiskers on kittens, winters, snowflakes. Now turn the page. Then after, what you have to do, you have to do worksheet 1. Now write down any 5 of your favorite things in the blurbs given below. So whatever you have favorite things, right, you have to write here. So mine are these: rose, cake, lily, dogs and honey. So see here, these are my favorite things, right? So now in the blanks given below, write one quality for which you like the things written above. For example, you may like an ice cream for its taste. अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपने यहाँ पर अपनी फेवरेट थिंग्स लिखी हैं, यहाँ पे आपको रीज़न बताना है कि वो फेवरेट थिंग्स आपकी क्यों फेवरेट है, राइट? जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम क्यों पसंद है सबको? टेस्ट के लिए, है ना? क्योंकि आइसक्रीम का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, राइट? सो लाइक आई लाइक रोज़ फॉर इट्स स्मेल, आई लाइक केक फॉर इट्स टेस्ट, आई लाइक लिली फॉर इट्स फ्रेगनेंस, आई लाइक डॉग्स फॉर इट्स faithfulness, I like honey for its sweetness, right? Then after, you can see here, can you touch or see the qualities for which you like your favorite things? अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो क्वालिटीज़ आपने लिखी हैं, जो भी आपकी फेवरेट थिंग्स हैं, राइट, इनकी क्वालिटीज़ को क्या आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नो, राइट? ऑफ कोर्स नॉट. यू कैन ओनली फील देम. स्मेल, टेस्ट, फ्रेगनेंस, फेथफुलनेस, स्वीटनेस, इन सबको आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना? द क्वालिटीज दैट यू हैव लिस्टेड अबव दैट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो आर यूनिट 1 इज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वो क्वालिटीज़ जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हीं को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, राइट? नाउ यू कैन सी हियर this is a worksheet 2nd. So now we will do it fast, right? So this is a add box and these are fill in the blanks. You have to fill it properly. So like Mother Teresa is known for her kindness. Kindness is also abstract noun, right? Noor Jahan, the wife of Emperor Jahangir, is famous for her beauty. Charlie Chaplin, the comedian, is remembered for his sense of humor. Hitler, the German dictator, is known for his cruelty. Mahatma Gandhi is respected for his honesty, right? So kindness, beauty, humor, cruelty and honesty, these are also abstract noun. Why? Because we can only feel them, right? We can't see and we can't touch. Okay, now see here, we'll do worksheet 3rd, brain teaser. Work with your partner, solve the crossword puzzle by filling in the qualities processed by the following people. So see here, cross or down, you have a words: a wise king, an angry person, an innocent child, a brave soldier, a sincere friend, a lazy worker, an honest shopkeeper, a proud actor. अब इनके लिए क्या है, मतलब क्या ऐसा क्या वर्ड है, ऐसी क्या इनकी क्वालिटीज़ है, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है. सो आई ऑल्सो फिल्ड हेयर. यू कैन सी प्रॉपरली एंड मैच इट, राइट? जैसे अ सिंसियर फ्रेंड, एक सिंसियर फ्रेंड में क्या हो सकती है? सिंसियरिटी हो सकती है. अ लेज़ी वर्कर कैसा होता है, आप बताइए? ऑब्वियसली लेजीनेस होती है उसके अंदर, है ना? जैसे कि एन ऑनेस्ट शॉपकीपर, उसके अंदर क्या होगी? ऑनेस्टी होगी. अ प्राउड एक्टर, उसके अंदर क्या होगा? प्राइड होगा, राइट? ऐसे ही अ वॉइस किंग, जो वॉइस किंग होगा उसके अंदर क्या होगा? विस्डम होगा. एन एंग्री पर्सन के अंदर एंगर होगा, राइट? एन इनोसेंट चाइल्ड के अंदर इनोसेंस होगा. एंड अ ब्रेव सोल्जर
ब्रेव सोल्जर की क्वालिटी क्या होगी, ब्रेवरी. सो दीज आर क्वालिटीज, और इन क्वालिटीज को भी आप क्या कर सकते हैं, फील. यू कांट सी और टच them. So these are also abstract noun, right? Now we'll do worksheet 4. Okay, so here what you have to do, you have a sentences of fear. ये क्या है, आपको कुछ fears दिए गए हैं और आपको उनके नेम लिखने हैं. So I have written down here, you have to write it down, right? Now class, we'll do worksheet 5, body language. So work with your partner, fill in the blanks with the abstract noun given in the add box. So you have an add box here, right? You have to select one word and fill in right place. So see here, I would be full of sorrow if I failed in English. Obviously आप दुखी होंगे अगर आप इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, राइट. आई वुड बी वेटिंग टू कीप अ सीक्रेट इफ़ आई विस्पर समथिंग. अगर आपको कोई भी अपनी बात बताता है तो आप उसको सीक्रेट रखेंगे, राइट. आई वुड लिसन केयरफुली इफ़ आई वॉन्टेड टू पे अटेंशन टू समथिंग. अगर आपको कोई भी बात ध्यान से सुननी है तो आपको अपना अटेंशन पे करना पड़ेगा, राइट. आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा. आई वुड रेज माई आईब्रो इन सरप्राइज इफ़ आई हर्ड समथिंग स्ट्रेंज. अगर आपको कुछ अचानक से पता चलता है तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे. माई फेस इज रिलैक्सड एंड बीम्स विद जॉय व्हेन आई वांटेड टू शो सेटिस्फैक्शन. अगर आपको सेटिस्फैक्शन दिखाना है तो ऑब्वियसली आपके फेस पे क्या होगा, रिलैक्स होगा और आपके फेस पे जॉय होगा. माई फेस टर्न्स रेड एंड आई ग्राइंड माई टीथ व्हेन आई एम इन एंगर. सभी के साथ ऐसा होता है, जब कोई भी एंगर में होता है तो उनका फेस रेड हो जाता है और वो अपने टीथ को ग्राइंड करते हैं, राइट. सो प्लीज राइट इट डाउन. नाउ विल डू worksheet 6, countable and uncountable nouns. So countable and uncountable nouns I hope you all know. countable nouns क्या होते हैं, जिनको आप नंबर्स में काउंट कर सकें. नंबर मतलब 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर. और uncountable noun क्या होता है, जिनको आप नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं, राइट. सो यू हैव many umbrellas with countable and uncountable nouns and you have to write here, राइट. सो काउंटेबल नाउन में आप देख सकते हैं क्या क्या आ सकता है, नोटबुक, प्यून, टूथ, ब्लैक बोर्ड, बॉयज़. इन सारे लोगों को आप नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, है ना. बट अनकाउंटेबल्स में सफरिंग्स, डिसिप्लिन, पिटी, सिकनेस, फायर, इनको आप नंबर्स में कभी काउंट नहीं कर सकते. सो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, राइट. Now you can see here more about the countable and uncountable nouns and you will understand definitely. And you can see here these are the examples of countable and uncountable noun, right. Now we'll do next exercise. See here, do it yourself. वैसे तो आपको ये खुद से करना है बट मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ इसमें. देखिए इसमें क्या करना है आपको, वर्क विद योर पार्टनर फ्रॉम फॉर्म abstract noun from the adjectives used in the following phrases and fill in the blanks. यहाँ पे आपको abstract noun को यूज़ करना है as an adjective, right. So यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये आप ध्यान से देख सकते हैं. जैसे द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो क्या होगा, द स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट. स्टूडेंट की इंटेलिजेंट होती है ना, कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है. सो द काइंड फेरी, द फेरीज काइंडनेस. द क्रूअल एनिमी, द एनिमीज क्रूअलिटी. The popular leader, the leader's popularity. The arrogant boy, the boy's arrogance, right. So these are the abstract nouns from the adjectives, right. Now see, we'll do next exercise number 2. Now you can see here Dheeraj's class is holding a quiz today. The time limit is 5 minutes. Help him solve the quiz so that he can win. अब क्या है, धीरज को एक क्विज दिया गया है, उसमें आपको हेल्प भी करना है, ठीक है. यू हैव अ डिक्शनरी. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक एड बॉक्स दिया गया है और आपको इसमें से फाइंड आउट करके एक सही वर्ड लिखना है यहाँ पर, राइट. सो यहाँ पर क्या है, मैच वर्ड्स इन द एड बॉक्स विद द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो. सो मस्टी, फॉल, aromatic, these are smells, right. Sour, bitter, sweet, these are taste. Smooth, flat, moist, these are
टच करके आप पता करते हैं ना क्या स्मूथ है, फ्लैट है कि मॉइस्ट है ना. हम चैटर एंड विस्पर, दीज आर हियरिंग, आप सुन सकते हैं ना इनको. प्रिटी, अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, दीज आर साइट्स, इनको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. सो नाउ योर यूनिट 1 इज completed, right? Bye bye.